Hi, hello, assalamu alaikum, and welcome to webinar presented to you by Psyche and the Mind Experts. Psyche and the Mind Experts क्या है? Psyche and the Mind Experts is an organization that is working day and night to promote mental health, to raise awareness about mental health, and to fill the gap between mental health practitioners and general people. आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं. You can become our mental health activist or mental health volunteer. All you have to do is contact us through our official Facebook page. मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट को वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम नॉलेज प्रोवाइड की जाती है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो या साइकोलॉजिकल इश्यूज या साइकोलॉजिकल टॉपिक से रिलेटेड हो. They then spread that knowledge among the masses. As you have guessed right now, this webinar will be bilingual. I would go from English to Urdu simultaneously. You can join us today as mental health activists. This is a note to take away. Just have to click message button on the official Facebook page and you will be good to go. अगर आप प्रोफेशनल हैं, साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल हैं, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज कॉन्टैक्ट अस. वी हैव साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन आवर प्लेटफॉर्म. Now, with this, we come towards my introduction. My name is Suzat Shaheen. I'm head of mental health activists at Psyche and the Mind Experts and also part of team management. So, what would be the topic today? Our topic is maintenance and processing of grief and loss in present pandemic. So, अगर हम grief की बात करें तो grief है क्या? What is grief? जब हम grief की बात करते हैं, when we talk about the word grief, the normal phenomena that comes to our mind is death. But grief is not just related to death. ये एक reaction है, रद्द अमल है. Whenever some change occurs in your body and that change is negative, for example, आपकी कोई डायरी थी जो आपके बचपन में आपके फादर ने आपको गिफ्ट की थी and that was very dear to you and you've lost it recently. So that would also result into the reaction of grief. ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि ग्रीफ ओनली कम्स फ्रॉम डेथ ऑफ अ लव्ड वन. ये सिर्फ एक फौतगी से नहीं होता है, ये इसका ताल्लुक लॉस से है, किसी भी किस्म का लॉस. आपकी कोई फेवरेट चीज़, आपका कोई नियर एंड डियर पेट भी हो सकता है. योर पेट कैन डाई और यू कैन हैव सम काइंड ऑफ अदर लॉस. यू कैन हैव लोअर ग्रेड्स एंड यू कैन गो इनटू ग्रीफ. So, to be very clear, you have to remember that grief is basically a reaction to any stimulus that is negative. ठीक है, that when you lose something that is near and dear to you. अब हम अगर आगे चलें तो हम ग्रीफ को सैडनेस से और डिप्रेशन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हाउ इज ग्रीफ डिफरेंट फ्रॉम सैडनेस एंड डिप्रेशन? जब हम बात करते हैं ग्रीफ की, as I said earlier, it's a reaction. You have to be very clear on it. It's a reaction. When we talk about sadness, it's an emotion. जज्बा है. One of the 6 major essential emotions of human beings. उनमें से एक important emotion sadness है. It's there in your system since the birth. Okay. अब अगर हम डिप्रेशन की बात करें, so depression is basically a disorder. Depression is something what we call is a psychological problem. It's a psychological issue. और प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम तब आता है जब कोई भी चीज़ हद से तजावुज़ करती है. You know, exceeds the limit. When anything at all exceeds the limit. आप अगर हद से ज़्यादा खाएंगे, although खाना हमारे लिए essential है, it's very important for us, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा खाएंगे, what will you gain? You will gain obesity. You will gain health problems. इसी तरह हम medicine लेते हैं. Medicine is something considered to be beneficial for us, right? It is something to be considered to be promising for us. लेकिन जब आप हद से ज़्यादा मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें, what will happen? Your body will react to it. ठीक है, you will have problems after that. So anything that exceeds the limit is dangerous to you. Depression की अगर हम बात करें तो it's the exceeded limit of sadness. It's the exceeded limit of that emotion, which is although necessary, which is in your system, but अगर वो एक हद से ज़्यादा गुजर जाए, एक टाइम पीरियड से आगे निकल जाए, तो वो डिप्रेशन कहलाता है. और नॉर्मली एक और स्टीरियोटाइप या एक और स्टिग्मा जो डिप्रेशन के साथ ऐड कर दिया जाता है, जिस तरह ग्रीफ के साथ ऐड कर दिया जाता है कि इट्स रिलेटेड टू डेथ, इसी तरह डिप्रेशन के साथ ऐड कर दिया जाता है कि इट्स रिलेटेड टू सैडनेस ऑल द टाइम. हर वक्त वो बंदा रोता रहेगा, हर वक्त वो बंदा दैट पर्सन वुड बी क्राइंग. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. डिप्रेशन के सिम्टम्स में ज़रूरी नहीं है कि दैट पर्सन इज ओवरली सैड. दैट पर्सन कैन बी ओवरली एनर्जेटिक,
also at times. With this, मैंने यहाँ पे ई बेथ 2016 ये राइटर हैं, इनके आर्टिकल कोट किया है. द इंफॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम दैट आर्टिकल. ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, we would go towards our next very important question कि अगर हमने ग्रीफ की बात कर ली कि ग्रीफ तो एक रिएक्शन है जो किसी भी ऐसी सिचुएशन से आ सकता है, जो सिचुएशन जिसमें कोई लॉस इन्वॉल्व हो, किसी चीज़ का खोना, किसी चीज़ का दूर जाना. आपकी जॉब के खोने पे भी आप ग्रीफ में जा सकते हो. यू कैन एक्सपीरियंस ग्रीफ इफ़ यू लूज योर जॉब. यू कैन एक्सपीरियंस ग्रीफ इफ़ यू लॉस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. You can experience grief if you recently have a divorce or you have had a breakup with your loved one. तो ऐसे में grief का reaction जो है वो normal होता है. Now when we talk about grief, एक और जो concept इसके साथ जोड़ दिया जाता है वो mourning का concept है. मातम करना या रोना धोना. And then another concept that is attached to it is bereavement. Bereavement भी सोग को कहते हैं, सोग मनाना. So what is exactly is the difference between grief, mourning and bereavement? Grief, जैसा मैंने पहले कहा, is a reaction. ठीक है, इट्स अ रिएक्शन टू सम काइंड ऑफ स्टिमुलस. ये मेंटल हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है, ये इमोशनल हो सकता है, बट मोर्निंग इज अ फिजिकल रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस. आप फिजिकली रिस्पॉन्स जब देते हो, यू आर क्राइंग. जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में इट्स वेरी कॉमन टू do some kind of gestures when somebody dies. Sometimes we do this, sometimes we do this, and sometimes we just cry on. तो वो जो एक फिजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसको आप नोट कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, दैट वुड बी मोर्निंग. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीफ एंड मोर्निंग. ग्रीफ क्या हुआ, रिएक्शन हुआ. मोर्निंग क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ. अब बेवरमेंट की बात करें तो बेवरमेंट इज सोग मनाना, और ये आपका लॉन्ग पीरियड में डिवाइड हो सकता है. इट कैन बी ऑफ अ वीक, इट कैन बी ऑफ अ मंथ, इट कैन बी, जैसे कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है दैट इफ somebody dies you have to grieve for 40 days. तो वो bereavement होता है when it is a state, when it is a period. ठीक है, so this was the basic difference, and the basic difference is provided to you through the knowledge gained by Fisher Center of Alzheimer's Research Foundation. आगे चलते हैं. अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हमारा टॉपिक है इट्स डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, दैट इज ग्रीफ, लॉस एंड पेंडेमिक. तो पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो पेंडेमिक बेसिकली क्या है. पेंडेमिक, देखिए, जब कोई भी बीमारी फैलती है, ठीक है, व्हेन अ डिजीज और डिसऑर्डर स्प्रेड्स, तो उसके स्टेजेस होते हैं. ठीक है, इट्स पॉसिबल. अब जैसे आम अगर हम फ्लू की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लू, इन्फ्लुएंजा, और वी टॉक अबाउट कफ, इट्स ऑल्सो अ वायरस. आप कफ करते हो, अ पर्सन कैन कैच कफ फ्रॉम यू. ठीक है, you've had a sore throat, you have had cough, and another person can catch that from you. That would be a normal virus, that would be spreading of normal virus. लेकिन जब एक ऐसा वायरस जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है, वो एक सिटी के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाए, बहुत बहुत हाई स्पीड में, एक सिटी के अंदर, एक सर्टन एरिया के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाए, तो दैट वुड बी आउटब्रेक. दैट वुड बी आउटब्रेक. अगर एक वायरस एक सिटी के अंदर या कंजाइनिंग सिटीज के अंदर, ट्विन सिटीज हमारे यहाँ पाकिस्तान में वी हैव ट्विन सिटीज दैट आर इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी. सो इफ वी से दैट दीज टू ट्विन सिटीज गॉट अ वायरस simultaneously in short period of time, then that would be an outbreak. अल्लाह ना करे. But if we move on further, और वही outbreak जो है वो आगे चलता जाता है, and it reaches different parts of the same country. एक ही मुल्क के different cities में वो outbreak चला जाता है. वो जो वायरस है वो बहुत थोड़े टाइम में, बहुत जल्दी एक कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर फैल जाता है, तो that would be epidemic. Outbreak within cities, एपिडेमिक विद इन कंट्री. ठीक है, और दिस वुड बी डिजास्ट्रस. वायरस का डिजास्ट्रस होना भी जरूरी है. द वायरस हैज टू बी प्रोमिनेंट, डोमिनेंट, टू बी नोटिस्ड. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें पैंडेमिक की, आउटब्रेक, एपिडेमिक, पैंडेमिक. द पैंडेमिक इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. अब क्या हुआ, आउटब्रेक में वो सिटीज में फैल रहा था, एपिडेमिक में वो कंट्री में फैल गया, लेकिन पेंडेमिक में वो कंट्री टू कंट्री फैल रहा है. इट्स स्प्रेडिंग इन अ वेरी फास्ट स्पीड अमंग कंट्रीज, अमंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पेंडेमिक. आजकल हम जो करंटली जिस पेंडेमिक को सफर कर रहे हैं, दैट इज COVID-19. इट्स कॉज्ड बाय अ कोरोना वायरस, एंड इट्स अनदर टाइप ऑफ SARS, SARS, which was a syndrome
which came back in 2003. Okay. अगर हम आगे चलें, so we would go to history of pandemic. हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक में अगर हम देखें, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो देर आर अ लॉट ऑफ पेंडेमिक्स दैट वेंट ऑन इन द हिस्ट्री. अगर हम 9th-10th की बायो की बुक ही उठा के देख लें तो मलेरिया वॉज समथिंग दैट वॉज एन आउटब्रेक बैक व्हेन द साइंटिफिक स्टडी केम इन ओरिजिन. तो हमें बहुत कॉमनली 9th-10th की किताबों में, बायो की किताबों में मलेरिया के केस को पढ़ाया जाता है. दैट इज एन आउटब्रेक, दैट वॉज अ वायरस, दैट वाज समथिंग कि वो हो रहा मच्छर से था, बट अपेरेंटली इट सीम लाइक अ वायरस के कोई चीज़ है हवा में दैट इज क्रिएटिंग इट, right? So there has been many different situations in the history. Pandemics की बात करें तो we have cholera that was in 1817. It lasted for 5 years. It is the long lasting one. इसके बाद AIDS था that is still going on. तो 1875 में Fiji measles आए थे that remained for 2 years. Then 1889 Russian flu and 1918 Spanish flu, and then uh, Asian flu, Spanish flu. All these three flus, Russian flu, Asian flu, and Spanish flu, remained for 1 year only. All lasted for 1 year only. AIDS, on the other hand, lasted eternally. I'm so sorry for that, but still it is there, and somehow the treatment is still in the process of being found out. Okay, अगर हम बात करें SARS की, as I said earlier, COVID-19 is a type of SARS. SARS is severe acute respiratory syndrome that first came in the world in 2003, and 2019 with another version came from Wuhan, and that is SARS-2. That was all from my side. That was all the introduction that I had to give. Now I would call upon our first guest, Ms. Nabila Rahim, a renowned psychologist, clinical psychologist, a hypnotherapist. We welcome her and we will ask our next question from her. Welcome, Ms. Nabila. Ms. Nabila. Thank you so much, Ms. Nuzhat and Psyche and the Mind Expert, for providing me such a great opportunity. Thank you so much for coming. Thank you so much for giving us your precious time. We know you are a busy person. So, Ms. Nabila, my question from you is, what are types of grief? अगर हम grief की बात करें तो obviously it has some types. तो कौन-कौन सी types हैं इसकी? Definitely, Ms. Nuzhat, you have very well explained about grief. Actually, हमारे पास जो सबसे important चीज़ है जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि हम गम की बात तो करते हैं, हम कहते हैं कि एक बंदा गम के असर में है, शोक के असर में है, लेकिन हम ये नहीं समझते वो दुख के कौन से फेज से गुजर रहा है. हम समटाइम ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो कि हमारे शोक को, हमारे गम को, grief को कम करने के बजाय बढ़ा देता है. Thank you so much, Nike, the Mind Expert, for creating very informative platform कि लोगों को पता चले कि grief basically है क्या, उसकी टाइप्स क्या है. बेसिकली एशिया हम कहते हैं हमारे अपना एक कल्चर है, बट काफी हमारा करते हैं. और समझने का क्या है, रिएक्ट करना है, बॉडी का एक्सप्लेन किया, डिप्रेशन फेज, आपने इसकी डिस्क्रिमिनेशन बता दी. Now let's come up with only the bereavement. Bereavement होता क्या है जो आपने बताया. Now I'm going to discuss some types of the bereavement. First of all, the normal bereavement. बहुत सारी types हैं, जिसमें से खास important types आपसे discuss करूँगी ताकि ये बजाय इसके आप बहुत ज़्यादा confuse हो जाए. The point knowledge के साथ सेशन को कंटिन्यू करेंगे. नॉर्मल bereavement क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन किसी भी ऐसे ट्रॉमा की तरफ, किसी एक ऐसे इंसिडेंट की तरफ जो हमें सिंपली एक्सेप्टेंस से लॉस की तरफ लेके जाए. हमारा नॉर्मल ग्रीफ होता है, एक नॉर्मल गम होता है. फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चों में कंपटीशन हो रहा है, तो अडल्ट में कंपटीशन है, एग्जाम का है, गेम का है. डेफिनेटली नॉन फैक्टर एक बंदा विन करेगा और एक हार जाएगा, लेकिन तो दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विन दिस गेम, आई एम गोइंग टू सेव द पोजीशन. वो एक्सेप्टेंस से जो लॉस का एक फेज होता है उसकी तरफ आना जो होता है, इट्स कॉल्ड नॉर्मल bereavement फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, फॉर द स्पेसिफिक स्टूडेंट, राइट. वो आपका नॉर्मल ग्रीव होता है. नाउ दिस इज द वन टाइप. नाउ कम अप टू द सेकंड टाइप, इज अबाउट एंटिसिपेटरी bereavement. एंटिसिपेटरी क्या होता है?
आप सोचो में ही खौफ की तरफ मुब्तला होते हो। फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिडन योर लव वन इज सिक, गॉड फॉरबिडन जैसे पेंडेमिक का टाइम पीरियड चल रहा है, आपके लव वन को कोविड डायग्नोज हो गया, गॉड फॉरबिडन, हम एक उस खौफ के अंदर होते हैं, एक इजहार हम नहीं कर पाते कि हम कैसे कह दें कि यार मेरे मदर को, मेरे लव वन को डायग्नोज विद कोविड एंड ही विल बी नो मोर विद अस इन फ्यूचर। मतलब एक ऐसी फीलिंग्स होती है कि हम एंटिसिपेट कर तो रहे होते हैं कि हमसे लॉस हो जाएगा, लेकिन वी आर अनएबल टू रेगुलेट आवर इमोशंस। और ये मुझे लगता है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि वी आर वेरी रिलेक्टेंट टू डिस्कस आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स। अब पेंडेमिक के एक सिचुएशन को हम ले रहे हैं क्योंकि हमारा कोर कंसेप्ट आज पेंडेमिक से रिलेटेड ही है। हम सब कहीं ना कहीं एंटिसिपेट तो कर रहे हैं ना, सडनली कोई लेट नाइट कॉल आती है तो हम एंटिसिपेट करते हैं खुदा ना खास्ता कोई बुरी खबर ना हो जाए, लेकिन वी आर अनएबल टू शेयर दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स, राइट। तो ये एंटिसिपेटरी बेरीवमेंट होता है। अभी तक हमने दो टाइप से बात की है मिस नजर। द वन इज नॉर्मल बेरीवमेंट, द सेकंड इज एंटिसिपेटरी बेरीवमेंट। राइट, वेरी गुड। बात को कंटिन्यू करें, इसके कुछ फर्दर टाइप्स भी हमारे पास हैं, जिसमें है एक मास्क बेरीवमेंट। मास्क बेरीवमेंट क्या होता है, नाम ही बता रहा है कि आप पर्सन जो उस गम का शिकार होगा या वो क्या करेगा, वो उसको मास्क करेगा, हाइड करेगा, लेकिन उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन वो चीज शो करेगा द पर्सन इज नॉट ओके। उसका सिटिंग स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, उसका बात करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, एंड बट एक्चुअली गोइंग इनसाइड कि कुछ कुछ चीज परेशान कर रही होती है उस पर्सन को, जिसको वो हाइड कर रहा होता है। इसी तरह से हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड बेरीवमेंट्स होती है हमारे पास। छोटे छोटे इंसिडेंट्स मिल के वो आपके अंदर इमोशंस को इकट्ठा करते रहते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस को इंक्रीज कर देते हैं। एज आई कोट अर्लियर, वी आर लिविंग इन एशिया, जहाँ पे अपने खौफ को बयान करने के लिए भी सिनेरियो को देखना पड़ता है, सामने वाले बंदे को देखना पड़ता है। वो कॉम्प्लिकेशन को इंक्रीज कर देता है और हम उस चीज पे बयान नहीं कर पाते, और वो बेरीवमेंट हमारा सेम गोल डिप्रेशन और फिर मॉर्निंग की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और फिर मेंटल इलनेसेस की तरफ एक एक हमारा ओपन पाथवे कर देता है। अगर हम ऐसे ही मजीद बात करें तो हमारे पास एक बेरीवमेंट की बड़ी खूबसूरत सी टाइप होती है, डिलेड बेरीवमेंट। मैं इसको इसलिए खूबसूरत हमेशा कहती हूँ कि हम इतने रिजिलियंट होते हैं, छोटे छोटे मसाइल को साइड पे करते हैं, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। हम अपने आप को नॉर्मल रखते हुए अपने अनकॉन्शियस में चीजें फेंक रहे होते हैं। फिर एक ऐसा प्रेसिपिटेटिंग इवेंट आता है, वो कहता है जी ये लें, फ्लड इज कमिंग फॉर टुवर्ड्स यू। वो जो डिलेड बेरीवमेंट है वो आप ऑन द टाइम क्योंकि बात नहीं करते, इमोशंस को रेगुलेट नहीं करते, तो वो आपका बेरीवमेंट डिलेड बेरीवमेंट में आता है। बॉटल अप कर चीजें, देते हैं ना लोग, निकालते नहीं है उसको हाँ, अंदर से, सिस्टम से निकालते नहीं। पेप्सी बॉटल हम उसको शेक तो कर रहे हैं लेकिन उसका कैप नहीं हम हटा रहे ना, वो जब कैप हटेगा तो फिर आपको नुकसान तो होगा, वो इर्द गिर्द को भी मुतासिर करेगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ bereavement जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। डिस्पाइट दिस कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं, डिस्पाइट दिस कि हम डॉक्टर्स हैं, डिस्पाइट दिस कि हम टीचर हैं, डिस्पाइट एनीथिंग, वी आर ह्यूमन बींग्स। हर इंसान का एक रिएक्शन होता है, हर इंसान का एक एक्सप्रेशन होता है। और मैं हमेशा अपनी सिटिंग में एक चीज कोट करती हूँ, हम बहुत अच्छे मजहब में भी हैं जहाँ पे सोग का भी एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे बताया गया कि 40 दिन तक आप कैसे किसी एक ट्रोमाटाइज फैमिली को जिसका लव वन लॉस होगा, कैसे उसको सोशल एंड मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट देनी है, कैसे वो इन फेजेस में आएगा। ब्रीफमेंट की बेसिकली कुछ टाइप्स होती है जो कि फर्दर ऑन आगे हमारे कुछ मजीद गेस्ट डिस्कस भी करेंगे। साइकिल द माइंड एक्सपर्ट वेरी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज दिस ह्यूज टॉपिक। सीरियसली जिसको मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इतना वास्ट है, जिससे हम जितनी बात करें ना उतनी ही अवेयरनेस आती है और हमें उतना ही समझ आता है कि बेरीवमेंट ऐसे एक्चुअली है क्या। अगर हम एक चीज और इम्पोर्टेंट देखें, बेरीवमेंट में टाइप देखें, दैट इज डिस्टॉर्टेड बेरीवमेंट। डिस्टॉर्टेड बेरीवमेंट क्या होता है, हमें थॉट से ही पता चल रहा है, हमारा रिएक्शन ही चेंज हो गया है, हमारा बिहेवियर ही चेंज हो गया, हम ये नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। एक बंदा है बड़े हंसते हुए हमसे बात करता है, लेकिन सडनली उसका बिहेवियर चेंज है, लेकिन वो रूटीन के काम भी कर रहा है। हम कहते नहीं यार ये तो बदल गया हमारे साथ, ये इसके पास बहुत पैसा आ गया है, इसकी पोजीशन आ गई है, इसकी तरक्की हो गई है। बट माइट भी हमें ये नहीं पता होता कि उसके अंदर डीप इनसाइड क्या ऐसा डिस्टॉर्शन चल रहा है जो उसको मुतासिर कर रहा है, जो उसको अफेक्ट कर रहा है और उसका बिहेवियर चेंज है।
ब्रीवमेंट को समझना इतना ही इम्पोर्टेंट है, बिलीव मी, जितना हम अपने डाइट को समझते हैं, लड़कियां मेकअप को समझती हैं, लड़के जॉब को समझते हैं। वेरी वेरी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और अनफॉर्च्युनेटली ये वो टॉपिक है जिसको बहुत दबाया जाता है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है ड्यू टू द स्टिग्मास एंड स्टीरियोटाइप्स दैट वी आर फेसिंग अनफॉर्च्युनेटली इन आवर कंट्री। तो एग्जैक्टली। जी, जी। प्लीज़ कैरी बिल्कुल ऑन। ठीक कह रही हैं मिस्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इसमें थोड़ा सा एक और टाइप को ऐड करना चाहूंगी कि हमारे जी, जी। क्यूमुलेटिव ट्रीटमेंट भी होता है। क्यूमुलेटिव क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अ वर्किंग लेडी, जॉब का भी स्ट्रेस है, मैरिड है, बच्चों का भी स्ट्रेस है, इन लॉज की एक अपनी कहानी है, मैके की एक अपनी कहानी है, हस्बैंड की एक अपनी कहानी है। जनरल से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स, हमें हमें असाइनमेंट्स है, हमारी एजुकेशन भी साथ चल रही है, छोटी छोटी चीजें मिल के जब क्यूमुलेटिव फॉर्म में आती हैं तो रिएक्शन तो होगा ना। हमें उस चीज को रेगुलेट करना है, हमें उस चीज पे बात करनी है, हमें बिल्कुल। exercise करना है। Despite the thing कि हम किसी, जब साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लें तो हम ये सोचें कि मैडम आप शाम में नहीं बैठेंगे या हम मॉर्निंग में नहीं आपको विजिट कर सकते। हमें स्टिग्मा को रिमूव करना है, ट्रीटमेंट पे बात करनी है, गमों को बांटना है। गम बांटने से कम होते हैं, खुशियां बांटने से ज्यादा होती हैं। ये वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है हमारी जिंदगी का, जिससे शायद हम दूर होते जा रहे हैं। While we are talking about bereavement, depression and anxiety, there is a main concern कि इसका इफेक्ट क्या होता है हमारी थॉट्स के ऊपर। हम इतनी टाइप्स की बात कर रहे हैं, हम इतने डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, अगर दे आर गोइंग टू अफेक्ट आवर थॉट पैटर्न और नॉट, दिस इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न। हमें सोचना है। डेफिनेटली रिसर्चेस प्रूव दैट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड ऑन bereavement जो कि मेंशन करते हैं कि bereavement के अंदर इंसान, ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन टोटल चेंज हो जाता है, उसकी थॉट चेंज हो जाती है। डिस्पाइट, अगर हम जानवरों की भी बात करें, एनिमल्स की बात करें, उनका भी रिएक्शन होता है। वो भी उसके, जब वो दुख में होते हैं, उनकी वो चीज वैसी नहीं, उनका बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाता है। आप सिर्फ हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है कि एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग राइट नाउ, हम किस चीज से भी कन्फ्रंट हो रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारी कॉग्निशन पे इफेक्ट आता है, वो होता है कंफ्यूजन। हम कंफ्यूज स्टेट का शिकार होते हैं, हमारी सोचने समझने की सलाहियत कंफ्यूज हो जाती है, हम समझ नहीं पाते कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे क्या करना है। अदम तवज्जा, जिसको उर्दू में हम कहेंगे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ओ यस, मैंने तो कुकिंग के लिए किचन में थी लेकिन वो तो सालन जल गया है मेरी। फॉर एग्जांपल, मेरी क्योंकि कॉल पे थी, मैं तो भूल ही गई कि किचन में कुछ पड़ा हुआ है। अडोलसेंस की अगर हम बात करें, सम स्टूडेंट्स आर लिविंग इन बोर्डिंग इन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, वो अपने घर के लिए भी परेशान है। खुदा ना खास्ता पेरेंट्स में से कोई एक डायग्नोज हो गया कोविड-19 के साथ, क्या होगा? बच्चा के एग्जाम्स भी चल रहे हैं लेकिन उसका माइंड घर की तरफ भी है, और ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद देयर लव्ड वंस। although they know that कि हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते, हमें क्वारंटाइन ही होना है, लेकिन स्टिल दे आर कंफ्यूज, उनकी तवज्जो, उनकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हुई हुई होती है। वो उनकी कॉग्निशन को सबसे पहले अफेक्ट करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारी कॉग्निशन पे इफेक्ट आता है bereavement का, वो है डिसबिलीफ। हाउ इट कैन हैपन विद मी। हम एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहे होते कि ये मेरे साथ हो सकता है। डिसबिलीव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सीबीटी की बात करें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमारा बेसिक टूल है साइकोलॉजिस्ट का, जिससे हम कहते हैं हम कुछ काम कर रहे होते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम ही थोड़ा चेंज है, मेरे साथ कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन हैपन विद मी, हाउ इट कैन हैपन विद माय लव्ड वंस। आपका डिसबिलीव ही आपकी कंफ्यूजन को भी रिलेट करता है। सी, आपका बिल्कुल। एक इवेंट कैसे दूसरी चीज को लीड करता है, और फिर हम शिकवा करते हैं कि बिहेवियर चेंज हो गया है। फिर हम ये नहीं सोचते कि हमें थोड़ा सा सुन लेना चाहिए कि यार द पर्सन इज, द पर्सन वाज वेरी गुड, बड़ा एक्टिव था, बड़ा चाको चौबंद था, बड़ा फ्रेश था, मल्टी डायमेंशनल था, सडनली वो चेंज हो गया है। वी स्टार्ट स्टिग्मेटाइजेशन, वी स्टार्टिंग ब्लेमिंग द पर्सन। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसका डिस्टॉर्शन कहाँ आ रहा है, कोई डीप इनसाइड कोई प्रॉब्लम तो नहीं चला। पैंडेमिक की अभी सिचुएशन है, हर बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान है अपने लव वंस के लिए। आल्दो कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी रेजिलिएंट, दे हैव एबिलिटी टू बाउंस बैक टुवर्ड्स द ट्रॉमा एंड वी आर डूइंग, बट द फैक्ट इज कहीं ना कहीं हम खौफजदा हैं। वैक्सीनेटेड होने से हम खौफजदा हैं, हम परेशानी का शिकार हैं। ये इफेक्ट करता है bereavement हमारी कॉग्निशन को इन अ फॉर्म ऑफ डिसबिलीफ,
in a form of confusion. The most important research says that जब एक बंदा bereavement के अंदर होता है वो sense of presence को feel करता है. Sense of presence क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारा गॉड फॉरबिडन कोई लव वन की डेथ हो गई है, रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि अगर बच्चा है वो 81% बच्चे सेंस ऑफ प्रेजेंस को फील करते हैं स्टिल 4 मंथ, वो अपने लव वन को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं. 2 इयर्स तक 61% बच्चे फील करते हैं कि उनका लव वन उनके पास है, उनसे बातें कर रहा है, मुझे खाना खिला रहा है. सी रिसर्चेस बट प्रिडिक्ट हियर के हमें बच्चों को ज्यादा फोकस करना है, एडोलसेंस को ज्यादा फोकस करना है. अगर हम करंटली पेंडेमिक की सिचुएशन को ही देखें, पेरेंट्स आर एट होम, children are at home, but see, we are still in living in a very distinct behavior, distinct attitude, distinguished temperament. How हम साथ रहते भी फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं. हम एक चेहरा जो सुबह देखते थे रात को देखते थे वो सारा दिन हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल. कर रहे. हमारे लिए ये भी एक दुख बहुत बड़ा हो चुका है कि हम उस बेरीवमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. हम बच्चों को कैसे मौका दे रहे हैं कि हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर लिविंग इन बोर्डिंग सिस्टम, हाउ वाज योर स्कूल एजुकेशन, हाउ वाज योर टीचर एटीट्यूड, व्हाट वाज योर डिफिकल्टी. सी व्हाट दिस हेल्प यू. आपके लिए ओपन करता है नए डोर्स को, नई अपॉर्चुनिटीज को, आपके बेरीवमेंट को रेगुलेट करता है, आपके पेंट अप इमोशंस को बाहर निकालता है, आपकी रेजिलियंसनेस को इंक्रीज करता है. जो सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे मिस नुजरत साकिर द माइंड एक्सपर्ट की प्लेटफॉर्म से जो चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज द मेजर टाइप विच वी कैन से कलेक्टिव बेरीवमेंट. कलेक्टिव बेरीवमेंट अभी हम पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर हैं. सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ लाहौर नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, सिर्फ केपीके नहीं, सिर्फ सरहद और सिंध नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ट्रॉमा को फेस कर रही है, जिसमें हमारी जॉब भी जा सकती है. बहुत सारे लोगों की जॉब चलेगी या खुदा ना खास्ता हम लोग रिस्क फैक्टर पे होते हैं. हमने बहुत सारे लव वन, एक नहीं दो नहीं तीन तीन लव वन को अपने हाथों से तदफीन की है. और अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, इनिशियल फेज में हम अपने लव वंस की तदफीन भी करने से घबरा रहे थे. ये क्या था, एक कलेक्टिव ट्रॉमा है हमारे इसलिए यार. व्हाट्स ये हमारे साथ कैसे हो सकता है? हम तो बड़े अच्छे ट्रू मुस्लिम्स हैं, हमारा अपना एक बिलीफ सिस्टम है, अब सब चीजें मिक्स होकर कलेक्टिव बेरीवमेंट के अंदर शामिल हो रही हैं. ये क्या करेगा? ये हमें मजीद उदास करेगा. और ऐसे में हमें किस चीज की जरूरत होगी? अवेयरनेस की, जो कि साकी एंड द माइंड एक्सपर्ट आल्दो के बहुत अच्छे से कर रहा है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं. अवेयरनेस जनरेट हो रही है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि गम की कोई टाइप अगर हम कहीं ना कहें, लेकिन एक टाइप बहुत ज्यादा होती है कि आपकी हंसी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. उस टाइप को अगर जहन में रखें, वहां पे थोड़ा सा टाइम दे दें अपने लव वन को, अपने नॉन पर्सन को, द bereavement become a normal bereavement. क्योंकि नॉर्मल bereavement में person is able to conduct to achieve his routine life patterns. But when this bereavement converted into the collective bereavement and other anticipatory bereavement, then they are not able to continue their routine lives, जो कि सिर्फ उस पर्सन को मुतासर नहीं करती बल्कि उसके साथ रहने वाले बहुत सारी लाइव्स को भी मुतासर करती है. Bilkul. Thank you so much, Ms. Nabila. Would you like to add anything to how it is linked with the current situation of pandemic? Although you have already added it, but if you want to add any more thing else, please go ahead. yes definitely, as I am a counselor और मोस्टली मेरा वर्क एडोलसेंस के ऊपर होता है, स्टूडेंट्स के ऊपर होता है. कुछ केसेस भी हमने इन दौरान इस सिचुएशन के दौरान जो डिस्कस किए हैं, वहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं फील करती हूँ, पेंडेमिक के दौरान हमारे एडोलसेंस को फोकस हमें करना चाहिए. बिकॉज एक तो वैसे ही वो फिजिकल चेंजेस का शिकार होते हैं, उनके अंदर फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं. सेकेंडली अगर वो बोर्डिंग सिस्टम में हो, स्कूल्स में हो, आल्दो के बोर्डिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है हमारे पास, देयर देयर टीचर्स, देयर केयर टेकर्स आर वेरी एक्टिव एंड वेरी विजिलेंट टू टेक केयर ऑफ देयर स्टूडेंट्स. बट हमें एडोलसेंस से फिर भी ज्यादा फोकस करना है, बच्चों को ज्यादा फोकस करना है. बिकॉज उनके लिए सिनेरियो बड़ा चेंज सा है कि हम तो अभी बिल्कुल ठीक थे, ठीक से स्कूल में आए हैं अपने एनवायरनमेंट में, ये क्या हो गया कि फादर को, ग्रैंड मदर को क्वारंटाइन कर दिया गया, हमसे अलग कर दिया गया है.
जहाँ पे हमें जरूरत है उन बच्चों से बात करने की, अपने एडोलसेंस को सेव करने की, क्योंकि एडोलसेंस हमारा वो सरमाया है जो हमारे लिए फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें हेल्प करेंगे इस तरह के पेंडेमिक को मोर इफेक्टिवली डील करने में। Okay, Miss Nabila, thank you so much. Thank you थैंक for यू सो मच। explaining it that beautifully and that extensively. और now we will take your leave. हम आपको end पे थैंक यू। दोबारा join करवाएंगे to ask questions. Okay थैंक जी, यू सो thank you मच। so much. Thank you. That was Miss Nabila Rahima, clinical psychologist, a renowned hypnotherapist. And now we will call upon our next guest. Her name is Miss Aruj Zara Rizvi, and she is currently a clinical psychologist, going to be a doctor soon. She's completing her PhD. Let's call her in and let's take our next question from her. अस्सलाम Assalamu alaikum, वालेकुम Miss नाज़रीन। Aruj. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी, बिल्कुल ठीक। ओके मिस अरूज, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ग्रीफ की स्टेजेस कितनी हैं और क्या हैं, और वो जो करंट पेंडेमिक चल रहा है उसके साथ रिलेट कैसे करती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच मिस और नुसरत, नेक्स्ट जिस पार्ट हम तरह बात से करेंगे बस। जी, जी, बिल्कुल। जिस तरह आपने भी देखा कि मिस नुसरत ने और मैम नबीला ने बहुत अच्छे और खूबसूरती से इसकी टाइप्स और ग्रीफ के बारे में बताया कि ग्रीफ होता क्या है, उसकी टाइप किस तरीके से हैं, और उसको उन्होंने एडोलसेंस के साथ किस तरीके से लिंक किया। जिस तरह आज के दौर में, आज का जो पूरा साल है, आज का भी साल और पिछला भी साल अगर हम इसको कंबाइन किया जाए, तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डिप्रेशन के अंदर गए हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के अंदर गए हैं, फ्रस्ट्रेशन के अंदर गए हैं। और जिस तरह मिस नबीला ने टाइप्स की बात की है, उसमें एंटिसिपेशन की बात की है, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ की बात की है, मास्क ग्रीफ की बात की है, तो इसी तरह जो है ग्रीफ के आगे से स्टेजेस हैं। अगर हम उन स्टेजेस को डिफाइन करें, लिंक करके उनकी टाइप्स के साथ, तो टोटली जो है हम 5 स्टेजेस को आज डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने बात की है कि गवर्नमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर जो है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी भी जगहों के ऊपर जो है वो किस तरीके से कोरोना ने अफेक्ट किया है, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें हम बात करना चाहेंगे, वो डिनाइल है। जिस तरह उन्होंने कलेक्टिव ग्रीफ की बात की है कि सिर्फ हम अफेक्टेड नहीं हुए हैं, बाकी सारे मुल्क भी अफेक्टेड हुआ है। तो जो हमारी स्टेजेस को अगर हम देखा जाए ग्रीफ के अंदर, तो सबसे पहली जो स्टेज है, अगर आपको पता हो आइसबर्ग क्या होता है, जो आपको ऊपर से नजर आ रहा होता है वो डिफरेंट होता है, और जो नीचे से होता है वो डिफरेंट होता है। हमें नहीं पता उसकी सतह में क्या चीज़ है, और जो हमें जो चीज़ नजर आ रही है हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज़ है। तो जो ग्रीफ है, आप समझ लें कि वो आपका एक आइसबर्ग है। तो अगर हम उसकी स्टेजेस की भी बात करें, तो वो भी एक आइसबर्ग है, जिसको हमने 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। और ये जो 5 स्टेजेस हैं वो कोलबर्ट रोज ने दी हुई हैं, ठीक है। और वो बड़ी ब्यूटीफुली कहता है कि जो इसकी 5 स्टेजेस हैं, उसमें नंबर 1 आ जाता है डिनाइल, जिसको दूसरी आ जाता है आपका एंगर, थर्ड आपका आ जाता है आप बार्गेनिंग किस तरीके से करते हैं, इसको मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगी। नंबर 4 पे वो कहता है डिप्रेशन, नंबर 5 पे कहता है एक्सेप्टेंस। अगर आप इसको 3 चीजों में डिवाइड करें आइसबर्ग में, कि वो आपको सामने कॉन्शियसली क्या चीज नजर आ रही है, तो कॉन्शियसली ये है कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम उसकी सिर्फ पानी की सतह को देखें, जिसको हम कहते हैं बार्गेनिंग, या जिसको हम कहते हैं कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है, और उसके बाद आपका सबकॉन्शियस जो बीच में आ रहा है, तो हम उसकी बात करते हैं, वो आपका इमोशनल सपोर्ट है। जब आप ग्रीफ में होते हैं, तो आप जब दूसरों को इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस अंदाज से प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जो इमोशनल सपोर्ट है वो किस कदर आपको मिल रही है, या आपकी इमोशनली फीलिंग क्या है। और उसके बाद जो है वो आप डायरेक्शन कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, गाइडेंस कौन सी ले रहे हैं, खुद ही अपने आप को गाइड कर रहे हैं, या आप दूसरों से गाइडेंस की तवक्कुआत रख रहे हैं, या आपके जो इर्द गिर्द जितने भी लॉस हुए हैं आप उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। जैसा देखें, अल्लाह मियां ने कहा है कि कुल नफ्सल मौत, हर बंदे ने मौत का जायका चखना है, ये आले इमरान की है। और अल्लाह मियां ने ये भी कहा है कि जो लोग सब्र करेंगे, ठीक है, ग्रीफ जो है वो गम है आपका, अगर आप सब्र करोगे उसके अंदर, तो आपको उसका रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो हमें सब्र करना चाहिए, हम जो है वो सब्र नहीं करते, हम अपना सब्र तोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जो था 2019 2020 जो था, वो हमारे लिए बहुत ही ग्रीफ स्टेज का था, जिसमें बहुत सारे लोग जो ब्रीवमेंट की तरफ चले गए, वो अभी तक वापस नहीं आ सके। लोगों का पूरा जो घर था वो तबाह
हो गया, नहीं समझ आई कि हमने उसको किस तरीके से देखना है, पूरे घर किस तरह जा रहे हैं। और ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, सिर्फ हम लोग अफेक्ट नहीं हुए, जैसे मिस नबीला ने बात की, एडोलेसेंस भी अफेक्ट हुई, ये बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं और हमने उनको निग्लेक्ट किया है। अगर आप सोचा जाए तो 2019 से बैक में देखा जाए तो हम कभी कभी तवक्कुआत किया करते थे और सोचा करते थे यार कब छुट्टियां आएंगी, कब हम सुकून करेंगे और हम अपने घर में सुकून से रहेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, जब हमें वो सुकून मिला है तो वी आर फ्लस्ट्रेटिंग, हम जो है वो एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं है। हमारे जो इस ग्रीफ और पेंडेमिक को लेके जो टॉपिक है उसमें सबसे मेन जो रोल है वो आपका आता है डिनाइल का और एक्सेप्टेंस का। हाउ यू एक्सेप्ट दिस, कि जो पेंडेमिक में जो चीज़ें चल रही हैं हमने उसको किस तरह एक्सेप्ट करना है। अगर आपको पता हो कि हमारे जो पिछले बैक वेबिनार्स हुए हैं उसमें हमने सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात की थी, सेल्फ वैलिडेशन की बात की थी। तो जो सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है वो हम बहुत मुश्किल से गेन करते हैं। अगर हम डिनाइल की बात करें तो डिनाइल जो है पहली स्टेज है आपकी ग्रीफ की। तो डिनाइल जो है वो आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो यूजुअली हर बंदा किसी भी मौके पे यूज कर सकता है। आप यूज करें, बुरी चीज नहीं है, लेकिन डिनाइल जो होता है वो आपको बहुत सारी चीजों की तरफ, अवॉइडेंस की तरफ ले जाता है, फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है, आप कंफ्यूज होते हो, आप फियर की तरफ चले जाते हो। जैसे मिस नबीला ने बताया कि जो बच्चे उसमें बोर्डिंग में रहते हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह एक्सेप्ट करे कि अगर उनके घर के किसी बंदे को कोविड जो है वो पॉजिटिव डिफाइन हो चुका हुआ है। तो इसी तरह जो है, जब अगर हम डिनाइल को देखा जाए तो डिनाइल की जो स्टेटमेंट्स होती हैं हम लोग उसमें एक्सेप्टेंस नहीं करते। डिनाइल एकदम से नहीं आता, हम स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है वो डिनाइल की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हो गया है, पेंडेमिक की वजह से कोविड हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिनाइल कब आपका जो है वो डिप्रेशन में आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को अफेक्ट करते हमें नहीं पता। तो डिनाइल को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका कोपिंग मैकेनिज्म है, अच्छा है, यूज करें, लेकिन उसको एक्सट्रीमली ओवरलैप मत होने दें, एग्जेजरेट ना करने दें। अगर हम उसकी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स डिनाइल की बात करें, डिनाइल के अंदर ही, तो आप जिस तरह देखें इंडिया में क्या हुआ है। इंडिया के अंदर जो है उन्होंने पहले कहा कि कोविड पे हम लोगों ने बिल्कुल जो है वो पा लिया है, काबू पा लिया है। लेकिन और उन्होंने अपने जितने रिचुअल्स थे, जितने क्या कहते हैं पार्टीज थी, या जो भी कुछ थे, मतलब उन्होंने ओपन कर दिया। उन्होंने अपने मंदिरों को भी ओपन कर दिया, नमाजों को भी के लिए भी मस्जिदों को भी ओपन कर दिया। जितने रिचुअल्स पार्टीज वगैरह थी उन सब कुछ चीज़ों को उन्होंने ओपन कर दिया। उन्होंने कहा आप सेलिब्रेट करें। तो जब उन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट की तो आप ये देखें कि एकदम से जो कोविड ऑलरेडी मौजूद था वहां पर, और वो ऑटोमेटिकली सब लोगों में फैल गया, और जब वो फैला है तो कितनी सारी डेथ्स हो गई हैं। तो ये क्या था, उनका डिनाइल स्टेज थी। उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ और बहुत ज्यादा डिनाइल के साथ उस चीज को यूज किया, और उन्होंने जब सब चीजें ओपन की हैं तो लोग जो है वो ऑटोमेटिकली मरने की तरफ चले गए। इसी तरह तंजीनिया एक कंट्री है, उसके अंदर क्या हुआ है, उन्होंने फर्स्ट डे से ये बताना ही नहीं पसंद किया कि उनके वहां पर कितने ज्यादा जो हैं वो कोविड के पेशेंट मौजूद हैं और कौन कौन से लोग अफेक्ट हुए हैं। तो वो क्या है कि वो डिनाइल में, वो कहते हैं कि हमने वैक्सीनेशन को तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है, हम हर्बल रेमेडीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो आप वैक्सीनेशन यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो क्या चीज है, दे आर एक्सेप्टिंग बट दे आर इन डिनाइल। दे डोंट वांट टू शो कि हमने उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से बताना है। ग्रीफ क्या चीज है, आपका एक इमोशन है, नेचुरल यूनिवर्सल इमोशन की है। उसके अंदर आपका सोरो आ जाता है, सैडनेस आ जाती है, जिस तरह मिस नुजरत ने एक्सप्लेन किया। तो हम जब उस इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो यू कांट हैंडल दैट थिंग। तो अगर आप बात करें स्टेटमेंट की, जो आजकल लोग जो हैं इतने सारी डेथ के बाद, इतने सारे लॉस के बाद जो डिनाइल की स्टेटमेंट यूज करते हैं, वो कहते हैं शी इज नॉट गॉन, कोई गया नहीं, शी हो या ही हो, ठीक है, वो समवे कहीं ना कहीं से आ जाएगा। अगर अभी अपने एक एग्जांपल दूं, रिसेंटली मेरी फूफो की डेथ हुई है, तो मैं स्टिल अभी भी डिनाइल में हूँ, लेकिन मेरा जो डिनाइल है वो एक्सेप्टेंस है। वो सतह के ऊपर है, वो डीप डाउन नहीं किया। हर बंदे के अगर लॉस हो जाए, क्योंकि वो मेरे बहुत ज्यादा करीब थी, वरना हम यूजुअली जो है वो फूफो को अच्छा समझते नहीं है कि हम अच्छा समझते हैं, लेकिन यूजुअली कहा जाता है कि उनकी जब डेथ हुई है, आई स्टिल नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट्स कम। और आज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ, कि जो आजकल जो डेथ्स हो रही हैं हम उनको रिलेट कर देते हैं पेंडेमिक के साथ। हम कहते हैं कोविड की वजह से हुई, हम तो बाकी सारी डिजीजेस को भूल गए हैं। और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसकी वजह से डेथ केस हो सकती है। तो प्लीज अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है। ये दुनिया के साथ, जिंदगी के साथ चलती रहती है। जिस मिस नुजरत ने स्टार्टिंग में पेंडेमिक के बारे में बताया, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो 5-5 साल, 3-3 साल, जो इवन के एड देखिए अभी तक स्टिल चल रहा है।
जब एड नया नया आया था तो किस तरीके से पूरे हुकूमत पे, पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वबा फैल गई थी और कहा गया था कि ये इस तरह कैसे हो गया, उससे मिलना नहीं है, ब्लड लग जाएगा, किसी का हम जूठा खा लेंगे तो कोई मसला हो जाएगा। अब मुझे जो है ना एग्जैक्टली कुरान के वो वर्सेस याद नहीं है। अल्लाह मियां कहता है कि मैं तुम्हें आजमाने के लिए वबा भेजता हूँ, ठीक है, जब मैं वबा वबा भेजता हूँ तो मैं आजमाता हूँ और उसके बाद तुम्हें सुकून भी देता हूँ। तो क्या चीज है, अल्लाह मियां हमें आजमा रहा है। और सिंपल सी चीज है, आल इमरान जो है, सूर्य आल इमरान कहती है आपको कि मैं जो हूँ, आप सब लोगों ने जाना इस दुनिया से, कुल्ल नफ्स जायकल मौत। तो वो क्या चीज है, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी हर चीज के जो पीछे बैकग्राउंड है वो एक्सेप्टेंस है। अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वी कांट डू एनीथिंग। हम आगे बात करेंगे कि हम एक्सेप्टेंस को किस तरीके से साइको एजुकेट कर सकते हैं, हम किस तरीके से अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं उसको एक्सेप्ट करने में, इस ग्रीव को, इस लॉस को जो हम अपने लॉस कर चुके हैं। अब दूसरी टाइप की अगर हम बात करें तो दूसरी टाइप के अंदर आपका आता है एंगर। एंगर, आपको पता है कि सब एंगर गुस्सा गर्मी दिखाते हैं। एंगर भी हमारा आइसबर्ग की तरह होता है, जो हम दिखाते हैं वो डिफरेंट होता है। जो आपके अंदर आप सोच रहे हो, जो आपकी कॉग्निशन है, जो आपके बिलीव्स हैं, यू नो वेरी वेल कि आपको वो एंगर किस वजह से आया है, क्यों आया है, और आपने उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है। समटाइम वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम क्या करते हैं, ठा करके जो है ना बोल देते हैं और अगला समझता है कि ये तो बहुत हमारी रूडली बात करती है। तो अगर हम ग्रीफ को एज अ एंगर के स्टेज के साथ लिंक करें तो इंसान जो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, इरिटेशन होता है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। और आपको पता है जो पेंडेमिक के साथ अगर देखा जाए तो मुझे उसका कोट याद नहीं आ रही, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ठीक है, उसने रिसर्च कंडक्ट की थी। उसने कहा है कि हमारे लिए पेंडेमिक का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारे अपने मर गए हैं हम उनको हाथ नहीं लगा पा रहे, हम उनकी तदफीन सही तरीके से नहीं कर पा रहे, हम उनको हग नहीं कर सके। उसने हमारे रिचुअल्स को तोड़ दिया इस पेंडेमिक में। ठीक है, इस रिचुअल ने पेंडेमिक को तोड़ दिया, लेकिन हमें एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना। हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हो। जब कहा गया है कि आपने अपनी केयर करनी है, डू वेयर मास्क, लेकिन हम मास्क पहनते ही नहीं है। हम कहते हैं सब पागल है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आपके अपने घर का बंदा जो है वो अफेक्ट हो रहा है, देन यू गेट टू नो यस देयर इज इश्यूज, देयर इज कोविड, देयर स्टिल कोविड। तो उसके बाद आप करते हो। हमारे अंदर सबसे ज्यादा मसला क्या है, हमारे अंदर एहसास अपने घर वालों के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। तो काइंडली डेवलप दैट फीलिंग कि हम दूसरों के लिए भी उसी तरह सोच सकें जैसे हम अपने लिए सोचते हैं। तो अगर हम बात करें एंगर की, तो एंगर आपको क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है, आपके अंदर एंग्जाइटी पेंटअप करता है, आपके अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। और हम एंगर, जब आपको ग्रीफ से गुजर रहे होते हैं, किसी भी गम के साथ गुजर रहे होते हैं, तो हम एंगर जब शो करते हैं किसी को, नहीं करना हमने, तुम चले जाओ यहाँ से, what is that, क्योंकि you are feeling that pain and the other person is not feeling that pain। लेकिन हम अगला ये नहीं समझ रहा कि आपका गुस्सा जो है वो टाइम टू टाइम ठंडा हो जाएगा। और जो एंगर है वो हर किसी में नहीं आता। इवन कि अगर आप अभी सिचुएशन को देखें, पिछले साल के लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, उनका जो एंगर है वो किस चीज का है, हुकूमत की तरफ है कि हुकूमत उनको चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स डिनाइल की तरफ कहेंगे। लेकिन जो है हम अपने लिए बहुत कुछ रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम वो रेमेडीज खुद भी अप्लाई नहीं करते हैं। तो दैट इज द रॉन्ग वे कि हम कोविड को नॉन सीरियस लेके हम खुद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो काइंडली प्लीज एक्सेप्ट दैट कि देयर इज अ कोविड सिचुएशन। और दूसरी बात ये, जो आपके घर में बच्चे हैं हम उनको बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं, उनके अंदर भी एंगर डेवलप हो रहा है जो पहले नहीं होता था। अगर हम स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं ग्रीफ के अंदर, तो एंगर जो है यूजुअली नहीं आता, इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन आजकल आ रहा है। तो अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें, उनको देखें कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, नोट डाउन कि उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। स्टॉप वाचिंग न्यूज, देखें न्यूज लेकिन लिमिटेड देखें। अगर आप ज्यादा देखेंगे तो आपके कॉग्निशन जो इफेक्ट होंगे, जिस तरह मिस नबीला ने बात की थी कि आप जिस बिलीव में चले जाते हैं, आपके जो बिलीव्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाती है। तो अगर हम एंगर की बात करते हैं तो एंगर की जो स्टेटमेंट होती है उसमें कहते हम ये बात करते हैं कि अगर वो बंदी अपना ख्याल रखती या बंदा अपना ख्याल रखता तो ये ऐसा होना ही नहीं था, ठीक है, ऐसा होना ही नहीं था। या वो ये सवाल करता है कि वाई अल्लाह ताला आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप दूसरों के साथ भी कर सकते थे। तो आप ये स्टेटमेंट नोट करें कि जब वो बंदा कह रहा है वाई दिस हैपेंड, आप दूसरों के साथ भी कर सकते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भाई सबके साथ ऐसा हो सकता है, दैट वन इज नॉट ओनली यू, ठीक है, हम किसी और का बेसिकली भी हो सकता है। हम बेसिकली ओरिजिनेट ही तब होता है ना जब हम रेजिस्ट करते हैं चीज़ों को, जब व्हेन वी डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग टू अस। जब हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दैट वुड रिजल्ट इनटू फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल,
ऐसे ही है। तो एंगर जो है वो यूजुअली नहीं आता, लेकिन यूजुअली ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हम एंग्जाइटी की तरफ जा रहे थे, हम इरिटेशन की तरफ जा रहे होते, हमें समझ नहीं आ रहा था हमने किस चीज़ को एक्सेप्ट करना और किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। इसी तरह जो है ये आपकी क्या आ जाती है, अगर हम एंगर और डिनाइल की बात करते हैं तो ये आपका इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की बात है। हमने किस तरीके से अपने एंगर को बताना है, हमने किस तरीके से अपनी जो है डिनाइल को बताना है कि हाँ हम इस चीज़ पर डिनाइल कर रहे हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंगर को भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप ये देखिए कि हर चीज़ का लिंक एक्सेप्टेंस से है। जैसा आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, इसी तरह हमें हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो ये आपकी जो आइसबर्ग को अगर हम नोट किया जाए तो ये आपका इंफॉर्मेशन और आपकी कम्युनिकेशन थी, जहाँ पे हम लैक कर जाते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप एक दूसरे से बात करना सीखें, बात करें, बच्चों से बात करें, बड़ों के साथ भी बात करें, डिस्कस करें। डिस्कस करने से चीज़ें रिड्यूस हो जाती है। अब नंबर 3 की अगर हम बात करें स्टेज की, तो वो आ जाती है बारगेनिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्टेज है, जो आपको कॉपिंग की तरफ लेके जाती है, जो आपको कहती है, पुश करती है कि आपने किसी से मदद मांगनी है। यूजुअली हम लोगों से मदद नहीं मांगते। अगर मैं फर्स्ट करें अपनी एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे लास्ट वीक में लग रहा था कि जस्ट आई एम अफेक्टेड विद कोविड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट अफेक्टेड विद कोविड, लेकिन आई एम नॉट टेलिंग एनीवन। इवन कि मैं क्या, आप में से अगर कोई अफेक्टेड हो भी जाता है तो आप क्या किसी को नहीं बताओगे, आपको आप अवॉइड करोगे? नो, डोंट अवॉइड दैट। आप इससे जो है दूसरों को जो है ना अफेक्ट कर रहे हो, और अपने लिए भी जो है ना आप लोग गलत चीजों का करवा रहे हो, और दूसरों के लिए भी गलत कर रहे हो। तो दैट इज रॉन्ग थिंग। अपना अपने ईमाल खुद लेके जाने हैं, और अगले ने अपने ईमाल खुद लेके जाने हैं। तो स्टॉप डूइंग दिस। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर सिम्टम्स हैं, प्लीज टेल अदर्स। 1166 के ऊपर कॉल करें और उनको बताएं कि इस तरीके से है, ताकि वो आपकी हेल्प आउट कर सके और दूसरों की भी हेल्प आउट की जा सके। तो अब जिस तरह हम बार्गेनिंग की बात कर रहे थे, उसमें कोपिंग स्ट्रैटेजीज आती हैं। आप हेल्प मांगते हो, उसकी जो स्टेटमेंट आती है उसमें कहते हैं अगर मैं करूंगा, और अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। करूंगा आपके पॉजिटिव कॉग्निशन में आ गया, नहीं करूंगा तो आपके नेगेटिव कॉग्निशन में आ गया। जिस मैंने कहा कि मुझे लगा कि मुझे कोविड शायद हो गया, मैंने बात की आके, ठीक है, तो जब मेरे टेस्ट हुए, सारा कुछ हुआ, दैट वन इज अ नॉर्मल थिंग, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, नेगेटिव था। तो मुझे ये हुआ, तसल्ली हुई कि मैंने बता दी। इसी तरह मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उनको कोविड था। उन्होंने एक बहुत ज्यादा गैदरिंग जो है वो इकट्ठी करवा ली, कोई सेलिब्रेशन कर ली, बर्थडे पार्टी थी, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दैट थिंग। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को 180 लोग उनके घर में आए। कैन यू इमेजिन, वो 180 के 80 इतने बुरी तरह अफेक्टेड हो गए, और उसमें से उन 180 में से मैक्सिमम 60 लोगों की डेथ हो गई। अब आप मुझे बताएं कि आप उस गम में जो जाएंगे, उस लॉस को जो फील करेंगे, तो ट्राई टू एक्सेप्ट कि व्हाट इज गोइंग अराउंड। आप चाइना देखें, चाइना में देखें किस तरह एक ही दफा केसेस आए हैं, उसके बाद कोई केस रिपोर्ट हुए नहीं हुए रिपोर्ट। तो क्यों रिपोर्ट नहीं हुए, कि दे आर लिसनिंग, दे आर एक्सेप्टिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड। तो काइंडली प्लीज एक्सेप्ट, एंड अपने बच्चों के ऊपर जरूर फोकस करें। जो बार्गेनिंग है वो भी आपका एज अ जो है डिफेंस मैकेनिज्म ही कह सकते हैं। वो आपको हेल्प आउट करता है एक्सेप्ट करने में, और दूसरों को बताने के लिए कि व्हाट यू वांट। इट इज अ लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट योर इमोशंस ऑफ ग्रीफ। इट हेल्प यू पोस्टपोन द सैडनेस। अगर आप ये नहीं हेल्प लेंगे, तो आप अपने ग्रीफ को पोस्टपोन नहीं कर सकेंगे, वो आपके अंदर ही रह जाएगा। इस बार्गेनिंग की स्टेज के अंदर जो है हम रिलीजियस पॉइंट की तरफ भी जाते हैं, हम स्पिरिचुअल पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब मेरे पास जो है वो बहुत सारे कभी लोग आते हैं, बच्चों को भी लेकर आते हैं, बड़े भी आते हैं, कोविड से परेशान होने के बाद। तो मैं उनको एक चीज सिखाती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये, ट्राई टू डू डीप ब्रेथ। एक्सेप्टेंस तो है आपकी, ठीक है। आप जब अल्लाह मियाँ से बात करेंगे, जब अल्लाह मियाँ आपको कुरान में कह रहा है कि मैं तुम्हारा आजमाइश में कर रहा हूँ, तो जब आपकी आजमाइश हो रही तो इस चीज को एक्सेप्ट करें। जो कोलरा जो था 5 साल रहा, लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया ना, 18 की बात है। हर साल जो है, इन 100 सालों में मैक्सिमम 10 to 15 टाइम जो है कोई ना कोई डिजीज अल्लाह मियाँ भेजता है, वो आपकी भलाई के लिए भेजता है, आपको समझाने के लिए भेजता है कि दैट देयर इज अल्लाह, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट अल्लाह एंड स्टॉप डूइंग बैड थिंग्स। तो अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग को जो है, स्पिरिचुअल डीलिंग को वो इंक्रीज करें। ये हमारी होगी 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज डिनाइल, सेकंड इज योर एंगर, एंड थर्ड इज योर बार्गेनिंग, जो मैंने आपको कहा था आप गाइडेंस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है, अगर आप बार्गेनिंग को यूज नहीं करते हैं, तो आप किस में चले जाते हैं। फोर्थ स्टेज इज योर डिप्रेशन। मोस्टली क्या होता है, लोग थर्ड स्टेज को यूज ही नहीं करते, एंगर के फौरन बाद डिप्रेशन पे चले जाते हैं। जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर सुसाइडल आइडिएशन पैदा हो जाते हैं।
जब आपके अंदर सुसाइडल आइडिएशन पैदा होते हैं, आपके अंदर होपलेस आ जाती है, आपको होता है कि बस ये ऐसा क्यों हो गया, ये मेरी वजह से हुआ है। जैसा सम टाइम आई सेड कि मैंने ऐसा किया, अगर मैं ऐसा ना करती तो ऐसा ना होता। ये सब अल्लाह मियाँ की विल है। आप जो भी स्टेप उठाते हैं वो अल्लाह मियाँ की विल से उठाते हैं। लेकिन अगर हम पैंडेमिक को इसमें इंक्लूड करें तो बेशक ये अल्लाह मियाँ की तरफ से आया है, लेकिन इसको डील करना हमारा काम है। ये हमारी विल है कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है कि हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। अब अगर हम डिप्रेशन में की बात करते हैं, व्हाट आई एम विदाउट हर, कोई अगर लॉस हो गया आपका, ठीक है, आप ये बात कह रहे हो कि मैं उसके बगैर क्या करूंगा, जिंदगी नहीं रुकती। आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी आस पे जी रहे हैं, जो आपके साथ जीना चाहते हैं। अगर इनकेस किसी बच्चे की डेथ होती है, अल्लाह ना करे, तो क्या होती है, माएँ तड़पती हैं, माएँ तड़पती हैं। तो वो तड़पना अच्छी बात है, रोना अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेथ के ऊपर जो है वो रोते नहीं है। प्लीज काइंडली रोया करें, जरूर रोएं, ठीक है। ये क्योंकि रोना आपको हेल्प आउट करता है, आपके कॉग्निशंस को बैलेंस करते हैं, मैं आपकी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना, आप एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाने के लिए। मेरी आई थिंक सो 5 ईयर बैक मेरी नानू की डेथ हुई थी। तो मेरी नानू की डेथ में क्या हुआ था, मैं बिल्कुल नहीं रोई थी, मैं स्टिल इन डिनाइल थी। 3 मंथ्स गुजर गए, मैं उस रूम में नहीं गई क्योंकि वहां पे उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। अब जिस तरह अगर बाहर कोविड की बात करते हैं, मेरे साथ कल किसी ने, बच्चे ने एक शेयर की कि कहा जाता है पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, ठीक है। मैंने बच्चा अपनी आंखों से देखा जिसके गले के ऊपर डोर लगी हुई थी, एंड वो तड़प रहा था जमीन के ऊपर बहुत बुरी तरीके से। व्हाई यू आर डूइंग दिस दैट काइंड ऑफ थिंग्स। और उससे क्या हो, और वो बच्चा जो है वो आयतल कुर्सी पढ़े जा रहा है, वला हौला वला कुव्वता पढ़ा जा रहा है। जो ये जो स्टेट होती है वो मेरे माइंड से नहीं निकल रही, लेकिन आई नो हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस, माई फीलिंग्स। तो आपने अपने कॉग्निशंस को डिसबिलीफ में, डिस्टॉर्शन की तरफ नहीं लेके जाना। अगर आप उसको डिस्टॉर्शन की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी जो लाइफ है बहुत मिजरेबल हो जाएगी। हमने अपनी जिंदगी को मिजरेबल नहीं बनाना। ठीक है, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, एक्सेप्ट देर इज अ लॉस। ठीक है, 40 डेज अल्लाह मैंने कहा है कि आप किसी का गम कर सकते हो, ठीक है, 40 डेज का होता है ना। तो आप उसको, जो ग्रीफ है, जो लॉस ऑफ ग्रीफ है आपका, उसको ब्रीफमेंट या मॉर्निंग के ऊपर मत लेके जाएं। अगर आप ब्रीफमेंट के ऊपर चले जाएंगे तो दैट वन इज एक्सेसिव थिंग। वो आप अपने आप को लॉस कर रहे हैं। ये, और आपको सबसे पहली चीज ये समझना चाहिए, आप इस दुनिया में किसी मकसद के लिए हैं। अगर आप उस मकसद को ही नहीं फुलफिल करें और आप डिप्रेशन में आप इतने ज्यादा पड़ जाएं कि नहीं अब मुझे भी मर जाना चाहिए, ये मेरी वजह से हुआ, अगर वो मेरे साथ होती तो ऐसा हो जाता या होता या जो भी कुछ है, तो इसका मतलब है यू आर डिनाइलिंग दैट थिंग। हमने इस दुनिया में नहीं रहना, हम सब ने जाना है। एक्सेप्ट कि यू आर हेयर फॉर समथिंग गुड, नॉट फॉर बैड थिंग्स। उसके बाद आ जाती है बात, जिस तरह मैं एक्सेप्टेंस की बात करूँ, हमारी 5वीं जो स्टेज है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। आप पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें, हु यू आर एंड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू। उसी तरह अगर आपका लॉस हो गया तो आप उसको एक्सेप्ट करें। अब जिस तरह मैं हूँ, अब मैं कहती हूँ, मैंने पूरे 40 डेज बाद एक्सेप्टेंस लेकर आई हूँ कि ठीक है मेरी फूफो की डेथ हो गई है, लेकिन दे गिव मी अ लॉट ऑफ मेमोरीज, बहुत सारी चीजें छोड़ के गई हैं। वी कैन लिव विद दैट मेमोरीज। इसी तरह पैंडेमिक में हॉस्पिटल में रोज शोर शराबा होता है। हम पैंडेमिक के बारे में सोचेंगे, कोविड के बारे में सोचें, लेकिन हो सकता है कोई और जो बंदा आपके साथ है वो कोई और डिजीज के अंदर भी तो हो सकता है। उसको हार्ट डिजीज भी हो सकती है, डायबिटिक भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ डिजीज दे आर फेसिंग। स्टॉप लेबलिंग के वो सिर्फ कोविड की वजह से अफेक्टेड हो रहा है। कोविड तो है, ठीक है, गो फॉर योर वैक्सीनेशन। ये मत करें कि आप वैक्सीनेशन के लिए भी नहीं जाए। लोगों ने पूरी चीजें फैला दी हुई हैं कि जो वैक्सीनेशन लगाएगा वो गलत हो जाएगा, उसको जल्दी कोविड हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखा जाए, इसके ऊपर पूरी स्टडी हुई हुई है, जो विदाउट वैक्सीनेशन के लोग हैं उनका जो चेस्ट एक्सरे है वो बहुत ही ज्यादा बैड है, और जो वैक्सीनेशन के साथ लोग हैं उनका अफेक्टेड हैं लेकिन वो बहुत माइनर है, वो रिकवर हो सकते हैं। आप अपने खुद केयर कर सकते हैं। और मैं सबको ये कहूंगी कि प्लीज काइंडली जो लोग बाहर जाते हैं, घर आया करें, पानी बॉईल करें, उस पानी के अंदर लौंग का इस्तेमाल करें और उसकी भाप लें। उससे आपको जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो हमारी जो 4th स्टेज है एक्सेप्टेंस, वो आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो आपको रिलीफ देती है। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, यू कांट मैनेज एनीथिंग कि आपने आगे किस तरीके से बढ़ना है। और उसके बाद अगर बात हम करते हैं अवेयरनेस की, हम इन 5 स्टेजेस को किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, हम किस तरीके से साइको एजुकेट कर सकते हैं लोगों। तो मैं आपको साइको एजुकेट के बारे में बता दूं। जैसे हम एक फैमिली के अंदर 5 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं, तो साइको एजुकेशन का मतलब होता है कि उसको अवेयर करना
कि ये जो चीज़ है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह ग्रीफ के बारे में मिस नुसरत ने बात की थी कि ग्रीफ की एक सैडनेस है, एक इमोशन है जो मॉर्निंग की तरफ, जो ब्रीवमेंट की तरफ जाता है। इसी तरह जो है साइको एजुकेशन जो है वो आपको बताती है कि आपने उस चीज़ के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम ग्रीफ के बारे में अपनी फैमिली को बताना चाहें, साइको एजुकेट करना चाहें, तो उसमें ये ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में खुद पता हो, उसके फ्लॉस पता हो, उसके नेगेटिव पॉइंट पता हो, उसकी पॉजिटिव पॉइंट पता हो कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, दूसरी तरह करेंगे तो किस तरीके से क्या होगा। तो प्लीज साइको एजुकेट योर सेल्फ, गेट योर अवेयरनेस कि आपने चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है। सेकेंडली, बच्चों को अवॉइड मत कीजिए। हमारे जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं और हम इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम फ्रस्ट्रेटेड बीइंग एज अ पेरेंट जो है वो हम उनके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। वो किधर गई वो सारी चीज़ें कि जहां हम कहते थे कि हमें अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें छुट्टियां मिले, हम अपने रिलैक्स हो, अपने माँ बाप को टाइम दें। बच्चों से पूछें सारा दिन आपने क्या किया, किस तरीके से किया। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उनकी हेल्प आउट करें पढ़ने में, ताकि वो रिलीफ फील कर सके। इसके अलावा कोई सवाल है तो प्लीज काइंडली जो है वो इस सेशन के बाद जो है वो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई हूँ। Sorry, Miss Nuzrat, I can't hear you. Assalamu alaikum everyone. Miss Nusrat, can you hear me? Miss Nusrat, can you hear me? Hello, are you there? हाँ जी अनम, बिल्कुल आपको लिसन कर सकते हैं। प्लीज यू कैन कंटिन्यू। Thank you so much, Miss अनम जो Aruj. है ना, And ये अनम जो है ना वो हमें बताएंगी हाउ कैन वी प्रोसेस ग्रीफ, ठीक है, और उसे कॉपिंग स्ट्रेटजीज हम कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने स्टेजेस को डिफाइन किया, इसी तरह जो है मिस अनम जो है वो आपको कॉपिंग स्ट्रेटजीज बताएंगी कि हम उसको कौन कौन से यूज कर सकते हैं first of ताकि all, हमें thank you हेल्प कर so सके much, ग्रीफ में। Psyche and the Mind Express, for arranging such a very important topic webinar
और थैंक यू सो मच मिस्टर रूज एंड मिस नबीला, आप लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत खूबसूरती से हर चीज को ब्रीफ किया है, ऑडियंस को बताया है। थैंक यू सो मच मिस नुज़रत इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि फॉर मी किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इफ द ऑडियंस गेट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो उनके लिए पूरे वेबिनार को समझना बहुत आसान हो जाता है। एट माय पार्ट इज coping strategies in grief and loss। उसमें क्या है कि सबसे पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हर इंसान का जो ग्रीफ का प्रोसेस है या जो एक ग्रीफ की फीलिंग्स है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का पेट एनिमल जो है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, अगर वो जिस बच्चे का पेट एनिमल है उसके दुख का लेवल, उसके ग्रीफ का लेवल जो है वो उस दूसरे बच्चे के दुख के लेवल से अलग होगा जिसके भाई का वो पेट था। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पेट एनिमल है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो शायद मेरी बहन को, मेरे भाई को इतना दुख नहीं होगा या इतने लॉन्ग टाइम का वो प्रोसेस नहीं होगा जितना मेरा खुद का होगा। इसी तरह आपके रिलेटिव्स में भी यही है कि खुदा ना खास्ता किसी की मदर की डेथ हो जाती है, तो जो आपका ग्रीविंग का प्रोसेस है वो जितना स्ट्रांग है या वो जितना लॉन्ग टाइम रह सकता है, वो किसी कि अगर वो चच्ची थी या फुफ्फो थी या मामी थी तो उसका शायद ग्रीविंग का प्रोसेस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि as Ma'am Aruj said, as you said, and Miss Nabila said, कि the very important thing is to accept the reality। आप जितनी जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए इस ग्रीविंग के प्रोसेस से निकलना और इस ग्रीविंग के प्रोसेस को एंड तक लेके जाना आसान हो जाएगा। ये चीज तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि ग्रीविंग एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई चीज है, किसी चीज के साथ आपको लगाव है, कोई एनिमल है, कोई पर्सन है, जब आपसे वो खो जाएगी तो डेफिनेटली एक ग्रीविंग की सिचुएशन होगी, एक गम की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। लेकिन जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और उस चीज को फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपके लिए शायद उस प्रोसेस से लड़ना और उस प्रोसेस से निकलना काफी हद तक आसान हो जाएगा। अगर हम इस पैंडेमिक से ही बात कर लें, हम में से अभी से बहुत से लोग हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, बहुत से लोगों ने इस पैंडेमिक को एक्सेप्ट ही नहीं किया। दिस सेड मोस्टली क्या कहा जाता है कि जो मौत कब्र में आनी है, जो रात कब्र में आनी है वो हर हाल में आनी ही आनी है। तो वट हमने इस पैंडेमिक को एक्सेप्ट ही नहीं किया, हम उसको किसी और जुमरे में ले जाते हैं, हम उसको किसी और स्ट्रेटेजीज में ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पैंडेमिक को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वह हम अपने बहुत सारे प्यारों की जानें बचा लेंगे, हम खुद से जुड़े लोगों की जानें बचा लेंगे और सोसाइटी में रहने वाले बहुत से लोग जो हैं वो सेफ हो जाएंगे इस चीज से। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो ग्रुपिंग स्ट्रेटेजीज में आती है उस चीज को एक्सेप्ट करना है। फिर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने आप को टाइम दें, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी का कोई पेट एनिमल चला गया है, उससे किसी बहुत प्यारे की डेथ हो गई है, कोई बहुत प्यारी चीज खो गई है, कुछ वक्त जरूर लगेगा उस चीज को एक्सेप्ट करने में। जब तक आप एज मिस्टर रूज सेड के उनको अपनी फुफ्फू की जो है वो डेथ को एक्सेप्ट करने में 40 डेज लगे। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे अपनी मदर की डेथ को एक्सेप्ट करने में मोर देन 1 ईयर लग गया, ठीक है। तो अपने आप को टाइम दे। कुछ चीजें हैं जिनके साथ आपके वही बात घूम के आ जाती है कि एक्सेप्ट आप जितना, आपको जितना टाइम एक्सेप्ट करने में लगेगा उतना टाइम तक आप गम की फीलिंग्स में रहते हैं, और आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको उस गम के प्रोसेस को कंप्लीट करना उतना आसान हो जाता है, ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरी कोलीग्स ने भी बताया, आपने भी डिस्कस की, एंड वी बीइंग साइकोलॉजिस्ट हम हर प्लेटफॉर्म पे और बीइंग इन द फील्ड हम ये बात करते हैं कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। हमें हमारा कोई लव वन खो गया है हमसे, हमारा ब्रेकअप इशू हो गया है जो आजकल की जनरेशन का बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो क्या है कि हमने एक्सप्रेस नहीं करना, हमने डिस्कस नहीं करना है कि यार हमारा ये नुकसान हो चुका है, हम लोगों ने अपना कोई बहुत प्यारा खो दिया है, हमें कोई इशू है, हम क्या तकलीफ फेस कर रहे हैं, हम किन फीलिंग्स से गुजर रहे हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं उन फीलिंग्स को।
हम वही में सरूज वाली बात है, हम डिनायल का शिकार हो जाते हैं, हम उन फीलिंग्स को सप्रेस करने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो इस फेज से खुद निकल सकते हैं, हमें किसी के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, हमें अपने पेन को दिखाना है। हम चीख के रोना चाहते हैं, हमें रो लेना चाहिए कुछ टाइम। हमें लगता है कि हम कुछ टाइम जो है वो रो के चीखो-पुकार करके या कुछ टाइम किसी बंदे को याद करके हम अपनी ग्रीफ के प्रोसेस को मुकम्मल कर सकते हैं। किसी के साथ बैठ के उस बंदे के साथ बात करके ग्रीफ के प्रोसेस को मुकम्मल कर सकते हैं, तो वी हैव टू डू इट। हमें जो एक गिल्ट हमेशा रहता है कि लोग क्या कहेंगे कि हम बैठ के रो रहे हैं, हम इस पेन को बैठ के फ़ील कर रहे हैं, हम इस पेन को बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें अपने कल्चर में देखने को मिलती है, हमें अपने घरों में देखने को मिलती है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, तो मोस्टली हम कहते हैं कि अच्छा छोड़ो उसकी बात ना करो, उसकी बेटी उदास हो जाएगी, अच्छा छोड़ो उसकी बात ना करो। अगर बैठे हुए हैं तो हम बच्चों को मोस्टली कहेंगे कि बच्चों को उठा दें जी, बच्चों के सामने बात ना करें, बच्चा उदास हो जाएगा। जब आप बात नहीं करेंगे, बच्चा एक स्पेसिफिकली बच्चा कैसे ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा कि वो वाक़ई ही हम में से जा चुका है। वो वाक़ई ही अब हमारा हिस्सा नहीं रहा। हम बुनियाद ही बच्चे की गलत बनाते हैं। हम उसको ये बातें करने ही नहीं देते, उसको ये बातें सुनने ही नहीं देते। किसी नानी की, चाची की, मामी की आउट ऑफ द होम डेथ हो गई है, तो हम कहते हैं बच्चों को घर रहना चाहिए। नहीं, वो वहाँ जाके क्या करेगा? वो सारी चीज़ें देख के क्या करेगा? नहीं, आपको उसको प्रिपेयर करके लेके जाना चाहिए। आपको उसकी एक माँ जो है या एक जो बड़ी बहन है या एक जो फादर हैं, वो बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको बच्चे के घर से काउंसलिंग करके लेके जाना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हर एक ने इस दुनिया से जाना है और आहिस्ता-आहिस्ता ये करने से हमें अपने पास से जो हम चीज़ें हमसे खोने लग जाती हैं ना, उनको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हमारे अंदर इंक्रीज़ होने लग जाती है। फिर ज़ाहिर बात है ग्रीफ एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी एक बच्चा, एक बूढ़ा बंदा जब भी उससे कोई चीज़ वो अपनी खोएगा, उसको दुःख होगा। लेकिन जब उसके अंदर एक्सेप्टेंस मौजूद होगी, तो शायद उस दुःख के प्रोसेस को कंप्लीट करना, बल्कि यकीनन उस दुःख के प्रोसेस को कंप्लीट करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। फिर मोस्टली इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्रीफ के प्रोसेस में, कि हमारी बॉडी की नीड्स क्या हैं, हम वही इग्नोर कर देते हैं। ओके, हमें खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, नहीं मुझे कहीं जाना नहीं है, नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, नहीं मुझे जो है वो फैमिली में आके नहीं बैठना, नहीं मुझे स्टडी नहीं कंटिन्यू करनी, मुझे कॉलेज नहीं जाना। हमारी जो बेसिक्स नीड्स है ना, हमारी उनकी तरफ से अटेंशंस जो हैं वो डाइवर्ट होने लग जाती हैं। हम उनकी तरफ से अटेंशन नहीं देते। आपको मालूम है खाना आपकी बॉडी की बेसिक नीड है। अगर आपकी बॉडी की बेसिक नीड पूरी नहीं होगी, आप फिजिकली एनर्जेटिक नहीं होगे, हाउ कुड बी इट पॉसिबल कि आप अपने उस इमोशनल क्राइसिस से लड़ सकेंगे? आप अपने उस इमोशनल क्राइसिस को जो है वो पास कर सकेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। गैदरिंग में बैठना, अपनी फैमिली में बैठना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ये किसी भी ह्यूमन बीइंग की नीड है। और अगर वो इन नीड्स को इग्नोर करेगा, वो प्रेस करेगा, वो डिनायल के पीरियड में चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो अपने इमोशनल क्राइसिस से नहीं लड़ सकता। ठीक है, यही चीज एक बच्चे के साथ है। एक बच्चे के पेट एनिमल भी, अगर एक बच्चे के लिए ना उसका पेट एनिमल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक टीचर की तरफ से गिफ्ट की हुई डायरी या एक बर्थडे पे मिला हुआ गिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा बच्चा आता है, वो कहता है मम्मा मेरा खिलौना टूट गया है, मम्मा मेरी डायरी गुम गई। टिपिकल एक पाकिस्तानी मदर क्या कहती है, अच्छा तो क्या हो गया, नहीं ले देंगे। आप नहीं तो उस बच्चे को ले देंगे, बट वो जो उस फीलिंग से गुजर रहा है कि उसकी बड़ी कीमती डायरी जिसमें उसने भले 3-4 पेजेस लिखे हैं, वो खो गई है और वो उसको उस चीज का दुख है, वो उस चीज को फील कर रहा है कि यार मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट डायरी थी, वो गुम गई है। आपने उसको कंसोल नहीं किया, आपने उसको सुना नहीं है, आपने उसकी फीलिंग्स को शेयर नहीं होने दिया, तो वो बच्चा किस तकलीफ से गुजरेगा, किस इमोशनल क्राइसिस से गुजरेगा, वो अपनी ग्रीफ के प्रोसेस को कितनी मुश्किल से कंप्लीट करेगा या उसको कितना टाइम लगेगा। इसी तरह अगर हम अडल्ट्स की बात कर लेते हैं या यंगस्टर्स की बात कर लेते हैं, मोस्टली ब्रेकअप इश्यूज हैं या किसी का स्पाउस इस दुनिया से चला जाता है या अलैदगी हो जाती है, तो मोस्टली अगर मेल्स में हम ये लोग बात करें, तो हम मेल्स को क्या कहते हैं कि आप तो मर्द हैं, हौसला करें, आपको तो हौसला करना है, आपको तो ये सब कुछ लेके चलना है। ठीक है, इसी तरह आप फीमेल
को क्या कहते हैं कि नहीं देखो, अगर तुम्हारा हस्बैंड की डेथ हो गई है तो तुम्हें बच्चों के लिए बड़ा मजबूत बनना है, तुम्हें इस तरह रोना धोना नहीं है, तुम्हें दुख का शिकार नहीं होना है। बट वो ये स्पाउस, जिनके स्पाउस चले गए हैं, जिन हस्बैंड है उसकी वाइफ चली गई है, एक वाइफ उसकी हस्बैंड चला गया है, लव वन है, एक लड़की का बॉयफ्रेंड या उसका फ्रेंड उसको छोड़ के चला गया है, या एक लड़के का छोड़ के लड़की चली गई है, तो क्यों वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते? हम में से कोई भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो है, वो कोई भी किसी बच्चे को, किसी अडल्ट को, किसी बूढ़े को, किसी यंगस्टर को क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका देते? और जब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे होते, उनको एक लेबल लगा दिया जाता है, एक बात कर दी जाती है कि भाई आपने स्ट्रांग रहना है, ठीक है? तो स्ट्रांग रहने के लिए उस ग्रीफ के प्रोसेस को कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी फीलिंग्स को अपने लव वंस के साथ, अपने क्लोज वन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रीविंग का प्रोसेस इस तरह कंप्लीट नहीं हो सकता कि आप घुट के, वो मिस नबीला ने बड़ी खूबसूरत एक एग्जांपल दी और मिस नजर ने भी उस चीज को कोट किया कि आप एक बोतल के अंदर जो है वो भरते जाते हो और उस बोतल का ढक्कन नहीं खोलने देते हो, तो वो उस बोतल का ढक्कन जब भी खुलेगा तो एक धमाका होगा हर हाल में, ठीक है? तो बेटर इज दैट कि उस बोतल के ढक्कन को धमाके से बचाएं। जब आपको लग रहा है कि वो बोतल भरी जा रही है तो उसको भरने से रोकें, आस्ता आस्ता अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। और बीइंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ साइकी इन द माइंड एक्सपर्ट, हमारी बीइंग अ प्रोफेशनल यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को एक्सप्रेस करने दें, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने दें, उन्हें मौका दें। कोई ना कोई आप किसी ना किसी, आपको कोई ना कोई इर्द गिर्द ऐसा जरूर मौजूद होता है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें, और अगर कोई भी नहीं मौजूद तो वी आर हियर टू लिसन टू यू, टू अंडरस्टैंड यू, ताकि आप अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है? उसके बाद आ जाता है, वही बात हम रिपीट करेंगे कि अपने आप को, आप किसी एक के जाने से आप कतई ताल्लुक नहीं कर सकते दुनिया के साथ। हम लोग ये समझते हैं कि, बल्कि हम लोगों को सोसाइटी ये मैसेज देती है कि अगर हम लोगों का कोई लॉस हो चुका है, या हम लोग अलग हो चुके हैं, या किसी भी वजह से मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाती है, या कोई भी ब्रेकअप इशू हो जाता है, तो हमें ये रियलाइज करवाया जाता है कि यार गलती हमारी है, ठीक है? ये कहा जाता है कि अब हम किसी के काबिल नहीं, या कोई हमारे काबिल नहीं था, और दैट सिचुएशन, उसमें अब क्या होता है कि आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। यार मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, या मैं किसी से क्या बात करूं, मैं किसी के सवालों का क्या जवाब दूं? भाई बीइंग अ सोसाइटी, आप ऐसे सवाल रेज क्यों करते हैं जिसका आपको पता है कि वो बंदा आपको जवाब नहीं दे सकता? आपको ऑलरेडी पता है यार वो एक ग्रीविंग प्रोसेस से गुजर रहा है, वो एक पेनफुल सिचुएशन से है, चाहे उसका स्पाउस की डेथ हो गई है, चाहे उसका ब्रेकअप इशू हो गया है, चाहे उसकी माँ चली गई है, चाहे उसका बाप। आप ऐसे क्वेश्चन रेज क्यों करते हैं जिसका वो आपको आंसर न दे सके? आप क्यों नहीं उसके साथ 15 मिनट बैठ के उसकी फीलिंग्स को सुन लेते? आप उसको क्यों नहीं उसको कंसोल कर लेते, रादर देन कि आप उससे ऐसे सवाल पूछें जो उसको मजीद आप लोगों से कट ऑफ करने की तरफ लेके जाएं, या आपको मजबूर, उसको, उस शख्स को मजबूर करें कि वो सोसाइटी से अलग ही रहे कुछ टाइम के लिए, तो ठीक है। फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे पैदा करना है। जैसे मिस नबीला ने कहा, मिस सरूज ने कहा कि ग्रीफ का एक प्रोसेस है, आप लोगों ने उससे गुजरना ही गुजरना है जब भी आपकी कोई नियर डियर चीज या कोई भी बंदा खो जाता है। लेकिन वो प्रोसेस एक लॉन्ग टाइम में ना चला जाए, आपको डिप्रेशन की तरफ ना ले जाए, आपको डिनाइल की तरफ ना ले जाए, आपको इन चीजों की तरफ ना ले जाए। इस चीज के लिए आपने क्या करना है, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है, और बैलेंस रखने के लिए वही बात इन रिटर्न होकर आती है कि आपको एक्सेप्ट करना है उन चीजों को। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, आपको कुछ टाइम लगेगा, 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, कुछ लोगों को हफ्ते, कुछ लोगों को महीने, लेकिन जब आपने ये चीज एक्सेप्ट कर ली तो इट्स मीन कि अब आप अपनी लाइफ की तरफ वापस आने लगेंगे। किसी की कोई चीज खो गई है, कोई शख्स उसका नजदीकी चला गया है इस दुनिया से, अदर देन ड्यू टू दिस पैंडेमिक या किसी भी सिचुएशन से, अगर हम इस पैंडेमिक के ही इस एग्जांपल में कोट कर लें कि अगर किसी के घर का खुदा ना खास्ता कोई कोविड की वजह से किसी की डेथ हो गई है और वो चले गए हैं, तो बट आपने बैलेंस भी तो लाना है लाइफ में कि अब तो हो गया है ऐसा, ठीक है, मैंने अपना बहुत प्यारा बंदा खो दिया है, मैंने अपना बड़ा नजदीकी बंदा खो दिया है, दुख अपनी जगह, दुख का प्रोसेस अपनी जगह, लेकिन व्हाट आई हैव टू डू नाउ फॉर द फर्दर
पीपल ऑफ माई होम, मैं अपने बच्चों को इससे कैसे सेफ रख सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे सेफ रख सकता हूँ। मेरी अगर बीवी चली गई है तो मेरा अपनी फैमिली के लिए ठीक और तंदुरुस्त रहना कितना ज्यादा जरूरी है। एक बीवी के लिए अगर शोहर चला गया है तो मेरा अपने बच्चों के लिए एक्टिव रहना अपने हस्बैंड के ना होने की वजह से कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। ठीक है, तो आपने ग्रीविंग प्रोसेस में अपने लिए बैलेंस भी क्रिएट करना है कि मुसलसल एक ग्रीविंग प्रोसेस के साथ साथ उस चीज को एक्सेप्ट करके आपने बैलेंस क्रिएट करना है। हाउ टू मूव इन द सोसाइटी, हाउ टू बैक इन टू द लाइफ, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल, ये सारी चीजें जो है वो कोपिंग स्ट्रेटजीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बीइंग अ मुस्लिम और विच एवर रिलीजन यू बिलोंग, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है किसी भी पैंडेमिक की सिचुएशन में, किसी भी ग्रीफ की सिचुएशन में। आपके पास अगर हम इसी पैंडेमिक को देखें तो जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, यू हैव अ वेरी इनफ टाइम टू बी कनेक्टेड विद योर गॉड, विद योर अल्लाह। ठीक है, आपको बड़ा टाइम मिलता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को, अपनी स्पिरिचुअल जो एक इस दुनिया की ना बड़ी तेज रफ्तार जिंदगी में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा काफी वीक हो चुका था। तो हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना है कि हमें इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, या हम जब ग्रीफ की सिचुएशन में, जब हम दुनिया से उस टाइम के लिए कट ऑफ हो जाते हैं या हम दुनिया की रियलिटीज को देख रहे होते हैं, तो क्या है कि हम जो है वो स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ थोड़े ज्यादा चले जाते हैं। जब हमें पता है एक बच्चा है ना, उससे उसका खिलौना खो जाता है या उससे उसकी डायरी खो जाती है या उसकी चीजें खो जाती हैं, तो वो क्या करता है, वो जो है वो अपने अल्लाह की तरफ जाता है, लमिया आप मुझे वो चीज लौटा देना, लमिया आप मुझे उस चीज का अल्टरनेटिव कोई है तो वो मुझे दे देना। और वो बच्चा कहाँ से वो चीज सीखता है? अपनी फैमिली से। अगर एक माँ का कोई चीज खो गई है और वो अपने बच्चों को शुरू से ये चीज सिखाती है कि बेटा स्पिरिचुअल हीलिंग भी कोई चीज होती है, तो वो बच्चा कल को स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जाएगा। और अगर एक बच्चा जाएगा तो एक अडल्ट भी ऑटोमेटिकली इन चीजों की तरफ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एट द एंड मैं यही कहूंगी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रीफ, हमारी मिस अरूज ने बात की, मैम नुज़रत ने बात की, मिस नबीला ने बात की कि जब आप ग्रीफ को एक्चुअली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए ग्रीफ के प्रोसेस को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप दूसरों को सुनेंगे, आप दूसरों से बात करेंगे, आप दूसरों के साथ उनका दुख शेयर करेंगे। वही बात है सरूज वाली कि आप सिर्फ अपने दुख को नहीं देखेंगे, आप दूसरों के दुख को भी अपने दुख की तरह ही समझेंगे। जो स्ट्रेटजीज आप अपने लिए अप्लाई करते हैं वही आप दूसरों के लिए भी करेंगे, तो ये ग्रीफ को प्रोसेस को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये ग्रीफ जो है वो आपके लिए इतना पेनफुल प्रोसेस नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों की दुख गम तकलीफ को अपनी दुख गम तकलीफ समझोगे तो मैं तुम्हारे दुख गम तकलीफ को दूर कर दूंगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड आई होप कि ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो हेल्पफुल होंगी इन दिस होल पैंडेमिक सिचुएशन और इन दिस होल ग्रीफ सिचुएशन। लेकिन एक चीज मैं लाजमी साइकिल द माइंड एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी कि जब ये सारी स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रही, देन वी प्रोफेशनल्स आर सिटिंग इन द फील्ड टू हेल्प सच पीपल। जहां पर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रही आपके ऊपर, आपके किसी भी क्लोज वन के ऊपर, वहां पर आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत जरूर पड़ती है। जी मिस अनुजत। Hello, are you getting me, Ma'am Nuzat? थैंक यू सो मच अनम, आपने बहुत खूबसूरती से जो है वो कॉपिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया। आई होप कि सब लोगों को ये समझ आ गई होगी। जो आपको समझ नहीं आए काइंडली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब जिस तरह सैयद मोहम्मद हसनैन ने सवाल पूछा, व्हाट इज नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यूजुअली जो एक्सेप्टेंस का टाइम है हम इस तरीके से इजीली इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस का ये आपकी विल पावर के ऊपर डिफाइन करता है कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट किस तरह करते हैं, आपके अंदर कितनी विल है कि आप उस चीज को गो थ्रू कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, आप किस
किससे हेल्प मांगते हैं, किससे जो है वो अपनी जो है वो गाइडेंस की तरफ जाते हैं, आप कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजीज की तरफ जाते हैं। तो वो आपकी उस विल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट करना है और वो कितना टाइम लेती है। यूजुअली जो होता है लोगों को मंथ लग जाते हैं, कुछ को 6 मंथ भी लग जाते हैं उन चीजों को एक्सेप्ट करने में। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको जो है विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स के अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें, ताकि आपकी जो कॉग्निशन है वो ज्यादा इफेक्ट ना हो, आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो यूजुअली आप जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज को जो है वो गेन कर लेंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मेंटल हेल्थ जितने भी इश्यूज हैं उनको रिड्यूस कर सकें। आप एंजाइटी की तरफ या स्ट्रेस की तरफ या इरिटेशन की तरफ रहेंगे, दैट वन इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप डिसऑर्डर की तरफ चले जाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम कंट्रोल करें कि आप डिसऑर्डर की तरफ ना जा सकें। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी जी मिस जी अरुण। बिल्कुल। बहुत अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया, और जो मिस्टर मोहम्मद सैयद मोहम्मद हसनैन ने पूछा है, इसमें थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें, नुज़रत ने स्टार्ट में बताया था कि ट्रीटमेंट क्या है, सैडनेस क्या है, मॉर्निंग क्या है, डिप्रेशन क्या है, मैटर्स अ लॉट कि आप किस फेज में हैं, किस स्टेट में हैं, और आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपका लाइफ एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर टू द रियल लाइफ, वो कितना मैटर करता है। ये सब चीजें मिलके ही आपके टाइम ड्यूरेशन को लीड आने में और कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। जनरली क्राइटेरिया जो हमारे पास आता है वो फ्रॉम 1 मंथ से लेके 7 मंथ तक आते हैं, मॉर्निंग तक का। उसके बाद ये डिप्रेशन के डिफरेंट फॉर्म्स में चला जाता है। लेकिन आप जितने रेजिलियंट हैं, आप जितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के मालिक हैं, आप एबल टू डिस्कस योरसेल्फ, यू आर एबल टू डिस्क्लोज योरसेल्फ विद योर लव्ड वंस, इतना ही आसान है। आसानी हमेशा आसानियां बांटने वालों के लिए होती हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो मुझे हमेशा लगता है कि हमें यूज करनी चाहिए। बिल्कुल। Our next question is again from Sayyid Mohammad Hasnan. What is suitable way to manage kids in this pandemic? Management ओके, में सनम आपकी इसमें मैं यही ऐड करना चाहूंगी कि देखिए मैंने अपने पार्ट में भी यही चीज डिस्कस की है कि हमने बच्चे को डे फर्स्ट से जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर देखें ये पैंडेमिक सिचुएशन है तो बच्चा हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है या कोई भी बात पूछता है तो हम उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इस पैंडेमिक सिचुएशन के ऊपर बच्चों को बिठा के एक दफा बता देते हैं कि क्या सिचुएशन है, इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं, हम अगर उन प्रिकॉशंस को नहीं लेते तो क्या नुकसानात हो सकते हैं, हम अपने आप को किस तरह सेव कर सकते हैं, तो बच्चों की समझ में वो कहते हैं ना छोटी उम्र में चीजें ज्यादा आसानी से समझ आ जाती हैं। तो वो चीजें जब आप एक दफा बच्चे को समझा देते हैं तो बच्चों के लिए समझना, उस सिचुएशन को समझना आसान हो जाता है। फिर आप घर में डेफिनेटली इस टाइम पे बच्चे आपके पास घर में हैं, आपने बच्चों को कैसे मैनेज करना है। आपको पता है कि बच्चे एक रूटीन के यूज टू हैं, भाई सुबह स्कूल गए, शाम में वापस आए, मोस्टली बच्चे अकेडमी गए, सिपारा पढ़ने गए, ऑल दीज एक्टिविटीज। अब सारा दिन बच्चे आपके पास है, आपने बच्चों को मैनेज करने के लिए किस तरह उनके टाइम्स को हेल्दी चंक्स में डिवाइड करना है, ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पेरेंट्स पे आ चुकी है। तो जब आप बच्चे की घर में रूटीन हेल्दी डेवलप करेंगे और साथ साथ इस पैंडेमिक सिचुएशन या किसी भी पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में उनको टोटली ब्रीफ करेंगे, चल क्या रहा है, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, हम सेफ कैसे रह सकते हैं, तो बच्चे को मैनेज करना जो है वो काफी आसान हो सकता है, रादर देन कि आप बच्चे के क्वेश्चंस के आंसर ना दें या उनके जहन में आने वाले क्वेश्चंस को सप्रेस करते रहें। Okay, thank you everyone for stopping by. Thank you so much for being there, for commenting, for sharing. Share this information with your loved ones so that everybody can gain this knowledge, gain awareness about all these topics. Thank you, Miss Anam, so much for your time. Thank you, Miss Nabila, for your Thank you. time. Thank you, Miss Anam, so much for your precious time. I know you guys are very busy in your life, and thank you so much for explaining everything to our audience that well and that extensively. Uh, Time has already been up from the expected time, but somehow the explanation was very extraordinary. And on this note, we would end our webinar today.
Eid Mubarak in advance to everyone. Have healthy, mentally healthy, and stay mentally healthy, and spread awareness about mental health. Don't forget to contact us if you want to be a part of our team. You can be a mental health activist or mental health volunteer. You just have to contact us, regardless of your educational or professional background. If you are a Thank you mental so health much. practitioner, you can also join us and be a part of world renowned psychologists, psychiatrists, and mental health practitioners, just like Miss Nabila, Miss Anam, and Miss Anuj. Thank you so Thank you Thank so you much. much. so much. Thank Allah you. Hafiz. Allah Thank you so much. Allah Hafiz.